Hello and welcome to Inspiration IS. Today is 17th June 2021 and we are going to discuss the important news analysis of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download daily MCQ and Vishleshan from our website by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for other study materials and notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC as well as other state PCS examinations. So if you are preparing for UPSC or other state PCS, then you can enroll in our online come offline foundation batches, where you will be getting the highly interactive classes of India's top UPSC educators. And this program has a unique features in which you have options to shift it from the online to offline format. So whenever the situations permits, you can even shift your online classes to the offline batches. For more information, you can call in this given number, or you can also register in our website. Inspiration IAS has started its online mock test series for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for this year prelims examinations 2021, then you can enroll in our mock test series. This mock test series will be available both in online as well as offline format. So for more information, you can call in this given number, or even you can register in our website www.inspirationias.org. So let's start our today's daily news analysis. तो आज का हमारा पहला न्यूज है, रिसेंटली 42nd सेशंस ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसमें हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स हैं, उन्होंने एड्रेस किया था ये 42nd सेशंस को। इस सेशंस में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी डिस्कस की, तो थोड़ा समझते हैं आखिर ये सेशन में हमारे फूड फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर वेलफेयर मिनिस्टर ने क्या बोला और ये सेशंस और किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और रिसेंट का FAO का एजेंडा क्या है। देखिए, न्यूज ये है कि रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एड्रेसेस द 42nd सेशंस ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्फ्रेंस। ये जो कॉन्फ्रेंस है हर 2 साल में होता है एक बार, एंड FAO जो होता है वो एक तरह का सुप्रीम गवर्निंग बॉडी होती है रिगार्डिंग फूड एंड एग्रीकल्चर। FAO, it determines the policies of organizations, approve the budget and make recommendations to members on food and agricultural issues. इंडिया की जो इफर्ट है फूड एंड एग्रीकल्चरल में, अभी रिसेंटली पैंडेमिक के सिचुएशन में भी हमने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जो काबिले तारीफ है, और इंडियन गवर्नमेंट की कुछ ऐसी इनिशिएटिव है जो दुनिया के सबसे बड़ी इनिशिएटिव्स है रिगार्डिंग फूड एंड एग्रीकल्चर। और जैसे मानो होगा, अगर इंडिया के बारे में देखा जाए तो कुछ बहुत ही बड़े बड़े टारगेट्स हमने अचीव किए हैं। जैसे पहला जो टारगेट ये है कि वी हैव अचीव द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। इस पेंडेमिक के सिचुएशन में भी हमारे जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है या हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो एक हाईएस्ट ग्रोथ को अचीव किया है, और इसमें इंडिया रजिस्टर्ड एन ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एट 305 million tons as well as in exports during 2020 and 21, contributing to global food security। तो global food security में हमने एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है इन दिस पैंडेमिक सिचुएशंस ऑल्सो। दूसरा इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है किसान रेल। ये एक ऐसी डेडिकेटेड रेलवे है जो बेसिकली किसान के प्रोड्यूस या फार्मर जो है या एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस होगा उसको अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग सिटीज में पहुंचाएगा। जैसे ये आपको दिख रहा होगा किसान रेल, ये स्पेशली डेडिकेटेड ट्रेन्स होती है जो फार्म के प्रोड्यूस को अलग अलग शहरों में पहुंचाने का काम करती है। It was introduced to transport the essential commodities including perishable horticulture produce, milks and dairy produce from the production centers to the large urban market। दूसरा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। अभी क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में बहुत लोगों की जॉब्स वगैरह चली गई थी और कुछ ऐसे फैमिली ऐसे भी थे जिनको खाने तक के फूड ग्रेन्स वगैरह नहीं थे, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा फूड पैकेज स्टार्ट किया है। एंड अंडर दिस स्कीम फ्री फूड ग्रेन्स वर प्रोवाइडेड टू 810 million beneficiaries and it has been further extended in which workers will be benefited till November 2021। तो ये सिर्फ उस समय तक की नहीं, ये नवंबर 2021 तक ये इसको एक्सपेंड किया गया है। पीएम किसान स्कीम्स, more than 1,37,000 crore has been sent to the bank accounts of over 100 million farmers under this to provide income support to the farmers। तो ये किसान स्कीम के तहत हुआ है। नेक्स्ट,
इंडिया ने कुछ क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ स्कीम भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो हमारा एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 टू एड्रेस द इशू ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड परमानेंट सॉल्यूशंस दैट इन्विसेज पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स। ये एजेंडा है इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, मतलब हर ड्रॉप में ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कराने का लक्ष्य है इंडियन गवर्नमेंट की। दूसरा, ग्रीन इंडिया मिशन, इट वाज लॉन्च इन 2014 अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग, रेस्टोरिंग एंड एनहेंसिंग इंडियाज डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर। तो दूसरा जो ग्रीन इंडिया मिशन, ये मिशंस काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको यूपीएससी इन सब मिशंस के बारे में पूछता है और इनके एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। थर्ड, जो जैसे आप लोगों को मालूम होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड, इट वाज लॉन्च्ड विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालाइजिंग क्लस्टर सॉइल सैंपल्स एंड एडवोकेटिंग फार्मर्स रिगार्डिंग देयर लैंड फर्टिलिटी स्टेटस। फोर्थ जो है परंपरागत कृषि विकास योजना, एंड इट वाज एग्जीक्यूटेड टू एक्सक्लूसिवली लेवरेज एडेप्टेशंस ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज इन कंजंक्शन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड फिफ्थ जो है रेन फेड डेवलपमेंट, it focuses on integrated farming system for enhancing productivity and minimizing risk associated with climate variabilities। तो ये कुछ स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट कुछ और स्कीम्स है, जैसे कि सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, इट एम्स टू इनकरेज फार्मर्स टू प्लांट मल्टीपर्पज ट्रीज टुगेदर विद द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड एडिशनल रिसोर्सेज ऑफ इनकम टू द फार्मर एज वेल एज इनहेंस फीडबैक टू फीड स्टॉक्स टू इंटर एलिया वुड बेस्ड एंड हर्बल इंडस्ट्रीज। देखिए आमतौर पे ये गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव्स है जिसमें एग्रो फॉरेस्ट्री को भी इनिशिएट किया गया है। जैसे कि सपोज करिए अगर कोई फार्म है, हो सकता है कभी कभी सिचुएशंस या क्लाइमेट के चलते ये अगर फार्म के जो क्रॉप प्रोड्यूस अगर खराब हो जाए, तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा इनिशिएटिव चालू किया जहां पर आप फार्म के अगल बगल कुछ एग्रो फॉरेस्ट्री या पेड़ वगैरह भी ग्रो करा सकते हो, जैसे कि दैट विल हेल्प इन एक्स्ट्रा इनकम एज वेल एज अगर कुछ ऐसा क्लाइमेट के प्रॉब्लम चलते अगर कोई सिचुएशंस अराइज करती है तो ये जो ट्रीज वगैरह है ये फार्मर के इनकम को सपोर्ट कर सकता है। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, इसमें बहुत सारे प्रोड्यूस ग्रो कराए जाते हैं। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल, इट हेल्प्स टू डेवलप, डेमोन्स्ट्रेट एंड डिसेमिनेट द टेक्निक टू मेक एग्रीकल्चर रेजिलिएंट टू एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो भी प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। उसके बाद ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, it is a submission under NMSA and aims to develop certified organic productions in value chain mode। जैसे कि सिक्किम वगैरह आपको मालूम होगा, यहाँ पर अधिकतर जो हमारे ऑर्गेनिक जो वैल्यू चेन है या ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को ग्रोथ कराने के लिए ये कहीं ना कहीं स्कीम लॉन्च की गई है। एंड अदर स्टेप्स बेसिकली हम लोग को मालूम ही होगा, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशंस, व्हाइट रेवोल्यूशंस, ब्लू रेवोल्यूशंस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन एंड प्राइस सपोर्ट सिस्टम। ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे मालूम होगा आप लोग एग्रीकल्चर के लिए हुआ है, व्हाइट रेवोल्यूशन बेसिकली मिल्क, ब्लू रेवोल्यूशंस फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ द फिशरीज एंड ओशन प्रोडक्ट्स एज वेल एज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये कुछ स्कीम्स है और उससे रिलेटेड कंसेप्ट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर। It's very important. UPSC generally used to ask these questions in pre as well as mains examinations. Our next news is recently SIPRI का report आया है and this report is on the global expansions of nuclear arsenals. SIPRI दुनिया में हो रहे कन्फ्लिक्ट और उससे रिलेटेड जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स या कोई आर्मामेंट उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करता है समय समय पर। और इस बार का जो रिपोर्ट है ये बेसिकली आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर है। कंसेप्ट क्या है, सिप्री ने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड इन द सिप्री ईयर 2021, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स which are ready and deployed have increased globally। अभी पूरे वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर वॉरहेड है उसका डिप्लॉयमेंट और दे आर इन डिप्लॉयड एंड रेडी कंडीशंस वो इंक्रीज्ड हो गए हैं। इस बार सिप्री का जो रिपोर्ट है वो बेसिकली न्यूक्लियर वॉरहेड्स से रिलेटेड है और इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स के बारे में बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट डाला गया है जिसमें कहा यह गया है कि रिसेंटली जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर।
सिप्री के बारे में जाना जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ये विच रिलीजेस इंटरनेशनल आर्मामेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये हर साल एक अपना ईयर बुक रिलीज करता है विच असेसेस द करेंट स्टेट ऑफ आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट्स एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में। इस रिपोर्ट्स की कुछ की फाइंडिंग्स है न्यूक्लियर आर्सेनल से रिलेटेड। इस रिपोर्ट्स ने कहा है कि अभी तक देयर आर 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। कौन कौन सा? यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। ध्यान रखिएगा P5 के अलावा 4 और कंट्रीज है जिनके पास ये न्यूक्लियर आर्सेनल है, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इजराइल हो गया और नॉर्थ कोरिया हो गया। उसके अलावा इस रिपोर्ट ने कहा है कि दिस कंट्रीज टुगेदर पोजेस एन एस्टिमेटेड 13,080 न्यूक्लियर वेपन्स एट द स्टार्ट ऑफ 2021। इन सब सारी कंट्रीज को के सारे न्यूक्लियर वेपन्स को मिला दिया जाए तो ये लगभग 13,000 से ज्यादा ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एंड कहा इस रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि इस पूरे जितने भी 13,000 से ज्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका लगभग 90% यूएसए और रशिया अकेले होल्ड करता है। एंड हैव एक्सटेंसिव एंड एक्सपेंसिव मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम अंडरवे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव चल रहे हैं जिसमें इन सब वेपन्स को मॉडर्नाइज करने की रिसर्च वगैरह चल रहा है। इसमें कहा यह गया है कि बोथ द यूएसए एंड रशिया हैव अप्रूव्ड द एक्सटेंशंस ऑफ द न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ऑब्वियस सी बात है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी को अमेरिका और रशिया ने अप्रूव किया है। And the treaty is the last remaining nuclear Russia-US arms control treaty which expired in February 2021। जो लास्ट जो ट्रीटी था वो फरवरी 2021 को एक्सपायर्ड हो गया था, तो उन्होंने बोथ रशिया और अमेरिका ने ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी फिर से लॉन्च किया है। चाइना का अगर न्यूक्लियर आर्सेनल्स के बारे में बोला जाए तो ये 350 वारहेड्स है अप टू फ्रॉम 320। 2020 के स्टार्ट तक तो 320 था, जबकि अभी अगर 2021 में लिया जाए तो ये 350 हो चुका है, लगभग 30 इंक्रीज किया है चाइना ने। एंड चाइना इज इन द मिडल ऑफ ए सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स न्यूक्लियर वेपन इन्वेंट्री। चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन इन्वेंट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है। इंडिया के बारे में बोला जाए तो इंडिया हैज एस्टिमेटेड अराउंड 156 न्यूक्लियर वारहेड्स एट द स्टार्ट ऑफ 2021 एज कंपेयर टू 150 एट द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। हमारे जो लास्ट ईयर था 150 था, जबकि हमने 6 और इंक्रीज किया है एंड इट एक्सीड्स अप टू 156 न्यूक्लियर वारहेड्स। पाकिस्तान के बारे में बोला जाए तो ये पाकिस्तान के पास 165 वारहेड्स है अप फ्रॉम 160 इन 2020। तो 2020 में ये 160 थे, जबकि 2021 के स्टार्ट में ये लगभग 165 हो गए। India and Pakistan are seeking new technologies and capabilities that dangerously undermine each other's defense under the nuclear thresholds। कहा यह भी गया है, इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ऐसे टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं जहां पर दोनों कंट्रीज के जो डिफेंस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं मतलब इट अंडरमाइन कर सकता है रिसेंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये क्योंकि लो लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है, कोई कंट्री डिटेल में डिस्कस नहीं करता है या नहीं बताता है, इसके चलते रिलायबल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशंस निकालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक एवरेज है। तो दिस डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी नॉर्मली दे यूज टू आस्क दिस डाटा। नेक्स्ट, अगर इन्वेंट्रीज के बारे में बोला जाए तो ये कुछ इन्वेंट्रीज शो किए गए हैं जहां पर कितने वॉरहेड्स अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, कितने वॉरहेड स्टॉक पाइल्ड है और कितने वॉरहेड डिप्लॉयड कंडीशंस में। तो अगर देखा जाए तो अमेरिका रशिया का जो वॉरहेड्स है वो आमतौर पे स्टॉक पाइल बहुत ज्यादा है और डिप्लॉयड है लगभग 1600। अमेरिका का वॉरहेड्स जो है जो स्टॉक पाइल है 3800 और डिप्लॉयड है लगभग 1800। चाइना 350, फ्रांस का ऑलमोस्ट डिप्लॉयड कंडीशन 290 है, यूके ऑलमोस्ट बहुत कम है, पाकिस्तान, इंडिया। तो ये कुछ इंडिकेशंस है इस न्यूक्लियर वॉरहेड्स का। अब बात आती है, सिप्री ने ये भी बताया है कि अभी रिसेंट टाइम्स में या रिसेंट ईयर्स में कौन कौन सी कंट्री है जो मेजर स्पेंडर है इन मिलिट्री वेपन्स या मिलिट्री आर्सेनल्स में। तो अगर ये कहा गया देखा जाए तो द ग्रोथ इन टोटल स्पेंडिंग इन 2020 वाज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपेंडिचर पैटर्न इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। तो दोनों ही बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं, बोथ यूएस एंड चाइना अपने वेपन्स और आर्सेनल में बहुत ज्यादा खर्च किए हैं। जैसे कि पहला है यूनाइटेड स्टेट और दूसरा जो है वो चाइना है।
in the spending of military expenditures. इंडिया थर्ड पोजीशन में आता है एंड वी हैव स्पेंडेड अराउंड 72.9 बिलियन विच इज एन इंक्रीज ऑफ 2.1% इन 2020 एंड इंडिया इज रैंक थर्ड हाईएस्ट स्पेंडर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, इंपोर्टर्स के बारे में बोला जाए तो सिप्री आइडेंटिफाइड 164 स्टेट्स एज इंपोर्टर्स ऑफ मेजर आर्म्स इन 2016 to 20। कंट्री वाइज अगर देखा जाए तो 5 जो लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है वो है सऊदी, इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना, and which together accounted for 36% of total arm import। तो ये 5 कंट्रीज मिलके 36% इंपोर्ट करते हैं टोटल। रीजन वाइज अगर देखा जाए द रीजन दैट रिसीव लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ मेजर आर्म सप्लाईज इन 2016 to 20 वाज एशिया एंड ओशियानिया। तो ये कुछ कंट्रीज है जो एशिया और ओशियानिया, जो ओशियानिक पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज है वो अधिकतर लार्ज अमाउंट ऑफ आर्सेनल्स लिए हैं and they account for 42% of global total followed by Middle East which receive 33%। तो ये कुछ रीजन है जो इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं अपने मिलिट्री या आर्म्स में। सप्लायर्स की बात की जाए तो 5 बड़े बड़े सप्लायर हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना which accounted for 76% of total volume of exports of major arms। तो ये डाटा कुछ इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अभी रिसेंट जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे कंट्रीज में हो रही है, जैसे कि मालूम होगा आपको सीरिया वगैरह, दूसरे रीजन्स में भी एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। इसके चलते या इथियोपिया में भी अभी आर्म कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इन सब सारे रीजन्स में कॉन्फ्लिक्ट के चलते भी इसका एक्सपेंशन हो रही है आर्म्स के इंपोर्ट वगैरह का। तो जैसे सबसे पहला जो है इंडिया और पाकिस्तान का टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर में, द सिचुएशन इन 2020 लेवल लार्जली रिवर्टेड टू द स्टेटस को ऑफ रिलेटिवली लो लेवल ऑफ आर्म्ड वायलेंस। जून 2021 में फॉर द फर्स्ट टाइम इज इन ओवर 5 डिकेड्स द बॉर्डर टेंशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, और डिस्प्यूटेड रीजन जो लद्दाख रीजन में हुआ उसके चलते भी इशू बढ़ा हुआ। एंड द न्यू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ब्रोक आउट इन तिग्रे, जैसे हमने कहा इथियोपिया में इन नवंबर 2020 between federal government forces and Tigray People's Liberation Front, which killed thousands and forced more than 46,000 refugees to flee into the eastern Sudan। तो ये कुछ रिपोर्ट्स रहा सिप्री और उससे रिलेटेड कुछ की फाइंडिंग्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नई पॉलिसी पे वो काम कर रहे हैं। बात यह है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमारे जो वार है और वार के हिस्ट्रीज है वो शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीक्लासिफाई करना स्टार्ट कर दे। इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडिया के जितने भी डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट, दे मेंटेन हाई लेवल ऑफ सिक्रेसी एंड क्लासिफाइड। एंड जैसे कि अमेरिका में आपको मालूम होगा हर कुछ टाइम के बाद चीजों को डीक्लासिफाई कर दिया जाता है, चाहे वो CIA के ऑपरेशंस हुए या वार वगैरह। बट इंडिया ऐसा नहीं करता था आज तक। ये हमारे अपने कुछ इंटरनल सिक्योरिटीज के चलते भी हम लोग नहीं करते थे। बट अकॉर्डिंग टू दिस डिसीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट इज गोइंग टू declassify certain incidents or wars which they think it is not it can be declassified। तो क्या है थोड़ा न्यूज समझते हैं। द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड ए पॉलिसी ऑन आर्काइविंग, declassifications, compilations and publication of war and operation history by the Ministry of Defense। इन दिस एंड डिजायरेबिलिटी ऑफ ऑथोरिटेटिव रिकॉर्ड्स, ये है कि ये कंसेप्ट ये कहता है कि द टाइमली पब्लिकेशन ऑफ वॉर हिस्ट्रीज वुड गिव पीपल एन एक्यूरेट अकाउंट ऑफ द इवेंट्स, प्रोवाइड ऑथेंटिक मटेरियल फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड काउंटर द अनफाउंडेड रूमर्स। रिसर्च के लिए और ऑथेंटिक मटेरियल एक मिले और किसी भी तरह के रूमर्स वगैरह है उससे बचा जा सके। तो इसके लिए ये डीक्लासिफिकेशन करने की बात की जा रही है। कहा यह गया था कि इससे पहले ये जो डीक्लासिफिकेशंस का जो मसला है ये बहुत पहले ही उठा था एंड कारगिल के टाइम में ही। The requirement of having war history written with the clear-cut policy on declassification was recommended by Kargil Review Committee 2019, which was headed by K. Subramaniam to analyze the lessons learned and prevent future mistakes। ये डीक्लासिफिकेशन इसलिए भी करने की जरूरत है क्योंकि एक कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी। आपको याद होगा कारगिल में जो वॉर हुई थी और उससे रिलेटेड एक रिव्यू कमेटी बनी थी जिसमें कहा यह गया था कि कुछ हम गलतियां हुई हैं हमसे, चाहे हमारे जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है या हमारे अपने इंटरनल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो उनके फ्यूचर में ऐसा कोई गलती ना हो उसके लिए डीक्लासिफिकेशन भी करना जरूरी है, सो दैट ए क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो सके।
Post Kargil conflict, a group of ministers recommended on national security 2001 also mentioned the desirability of an authoritative war history. 2001 में भी इसके बारे में कहा यह गया था कि हम लोग इसको कहीं ना कहीं डिक्लासिफाई करेंगे। आगे रिसेंट के प्रोविजंस फॉर द पॉलिसीज क्या है, टू ट्रांसफर ऑफ रिकॉर्ड ईच ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एमओडी सच एज सर्विसेज, जैसे कि आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी एंड इवन द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एंड असम राइफल्स एंड कोस्ट गार्ड विल ट्रांसफर द रिकॉर्ड इंक्लूडिंग वार डायरीज, लेटर ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड ऑपरेशनल रिकॉर्ड बुक्स एक्सेट्रा टू द हिस्ट्री डिविजन्स ऑफ एमओडी फॉर प्रॉपर अपकीप, आर्काइवल एंड राइटिंग द हिस्ट्रीज। तो ये सब जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, चाहे वो आप हमारे फोर्सेस ले लीजिए, दे यूज टू फॉरवर्ड ऑल द डिटेल्स विच दे थिंक इट शुड बी डिक्लासिफाइड, और ताकि उन सब डिटेल्स को यूज करके लिखा जा सके हिस्ट्री। ये भी काफी अच्छा है ये स्कीम्स। एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में एक बकायदा एक हिस्ट्री डिपार्टमेंट ही होगा विच विल हैंडल द इश्यूज, विच विल हैंडल और दे विल हैंडल राइटिंग्स ऑफ द वॉर हिस्ट्रीज। And the history division will be responsible for the coordination with various departments while compiling, seeking approval and publishing of war and operational histories. चलिए आगे बढ़ते हैं। a committee will be formed and for compilation of war and operational histories, and the policy mandated the constitution of a committee headed by joint secretary। ध्यान रखिएगा ये जो कमिटी होगी, it will be headed by a joint secretary of MOD and they will also composed of representatives of the services, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वॉर हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें होती है जो इंटरनेशनल रिलेशंस को भी इफेक्ट कर सकता है, तो इसलिए भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी इंक्लूड किया गया है। और कभी कभी क्या होता है कि वॉर हिस्ट्री से हमारे इंटरनल मैटर्स में भी कंफ्लिक्ट हो सकती है, तो उसके लिए होम अफेयर्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये तीनों डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे मिनिस्ट्री के, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोमिनेंट मिलिट्री हिस्टोरियंस इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़े तो मिलिट्री हिस्टोरियंस भी रखे जा सकते हैं इस कमेटी में। टाइमलाइन ये होगा, द पॉलिसी सेट क्लियर टाइमलाइन विथ रिगार्ड्स टू कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ वॉर एंड ऑपरेशनल हिस्ट्रीज। तो इसके लिए बकायदा एक क्लियर कट गाइडलाइन बनेंगे। The committee should be formed within 2 years of completion of war and operations, and thereafter collections of records and compilation should be completed in 3 years and dissemination of to all concerned. ये जो रिकॉर्ड शुड ऑर्डिनरी बी डिक्लासिफाइड, दैट इज नो मोर सीक्रेट इन 25 years। 25 साल के अंदर में किसी भी तरह का सीक्रेट अब नहीं रखा जाएगा। अमेरिका भी ये पॉलिसी फॉलो करता है। एंड रिकॉर्ड्स ओल्डर देन 25 years शुड बी अप्रेज्ड बाय आर्काइवल एक्सपर्ट्स एंड ट्रांसफर टू द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया वंस द वॉर ऑपरेशन हिस्ट्री हैज बीन कंपाइल्ड। तो इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा आर्काइवल में। तो ये भी काफी अच्छा है। Next, recently the responsibility for declassification of record, the rest will be the respective organization as specified in the Public Record Act 1993 and Public Record Rules 1997, उसके अंदर में दिया जाएगा। एंड फॉर इंटरनल कंजम्पशन, फर्स्ट पहले इस रिकॉर्ड को इंटरनल कंजम्पशन या इंटरनली उसको यूज किया जाएगा, और फर्दर लगेगा कि इसको पब्लिक कर दिया जाए तो पब्लिक भी किया जा सकता है। तो फॉर इंटरनल कंजम्पशन फर्स्ट, द कंपाइल्ड हिस्ट्री ऑन वॉर्स एंड ऑपरेशंस within 5 years will be for internal consumption first, and later the committee may decide to publicly release whole or part of it considering the sensitivity of the subject. Next, declassification of older wars. The declassification of older wars like 1962 war and Operation Blue Star is not automatic and will be taken up on a case by case basis by committee to be constituted under the new policies. ध्यान रखिएगा, 1962 का वार और ऑपरेशन ब्लू स्टार, इससे रिलेटेड ये ऑटोमेटिक नहीं इसको रिलीज किया जाएगा। इसके लिए बकायदा कमेटी होगी और वो डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू द इंटरनल मैटर्स किसको डिक्लासिफाई किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये आमतौर पे कुछ ऐसे केस बेसिस पर ये डिक्लासिफिकेशंस होगा। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि इसको डिक्लासिफाई करना चाहिए, देन ओनली दे विल डिक्लासिफाई इट, नॉट ऑल द रिकॉर्ड्स बेसिकली। सो दैट्स ऑल फॉर डिक्लासिफाइंग वॉर हिस्ट्रीज। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्कीम न्यूज है जल शक्ति अभियान से रिलेटेड। जल शक्ति अभियान जो लॉन्च किया गया था फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर। देखिए आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमारे धरती के पीने के जो साफ पानी है वो खत्म हो जाए, एंड आज बहुत सारी कंट्रीज ये सफर कर रही है ये ग्राउंड वाटर या फ्रेश वाटर के स्कैरसिटी से। And if we won't conserve this rain water, then drinking water की scarcity हो सकती है। न्यूज क्या है,
द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज अर्ज्ड ऑल एमपीज टू सपोर्ट द ऑनगोइंग जल शक्ति अभियान which is catch the rain campaign in their respective constituencies and states. ये सारे जो एमपीज को इस डिपार्टमेंट ने कहा है, मिनिस्ट्री ने कहा है कि आप अपने अपने एरिया में ये जो जल शक्ति अभियान है उसको कैंपेन कीजिए, इसको लॉन्च कीजिए और इनिशिएट कीजिए वहां के लोगों को, ताकि दे कैन हेल्प इन कंजर्विंग द रेन वाटर इन द नेचुरल एक्विफर्स. Such intervention would ensure water source availability in sustainability in rural areas and would strengthen the ongoing Jal Jeevan missions being implemented by the ministry. नेक्स्ट, जल शक्ति अभियान 2 लॉन्च जो किया गया है, इसके तहत कुछ ऐसे इसके इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जैसे कि द अभियान विथ द थीम, इनका जो थीम है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ये इसका कैंपेन है, टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स. जब जहां ये रेन फॉल हो रहा है वहां पर उसको कैच कीजिए और जब हो रहा है वहां पर भी कैच करना है इसको. तो आपको ये दिख रहा होगा जैसे कि ये बारिश हो रही है और छाते को उल्टा कर दिया गया है और यहाँ पर बकायदा ये वाटर को कंजर्व किया जा रहा है. तो दिस इज बेसिकली ए वेरी गुड इनिशिएटिव्स. सर्वे ये भी है कि सिर्फ 8% ऑफ ऑल रेन वाटर इज कलेक्टेड इन इंडिया, जबकि आपके यूएई और सऊदी वगैरह लिया जाए तो लगभग लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर को लोग कंजर्व करते हैं. इट कवर्स ऑल रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री. एंड जल शक्ति अभियान जो है जो लॉन्च हुआ था 2019 में, covered only 1592 water stress block out of 2836 block in 256 district of the country. तो अभी जो जल शक्ति 2 अभियान है, ये पूरे लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जा रहा है, सारे ब्लॉक्स को. एंड नेशनल वाटर मिशंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज द नोडल एजेंसी ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन. ये काफी इंपॉर्टेंट है. तो नेशनल वाटर मिशन इसके जो नोडल एजेंसी होगी, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आती है. टोटल ऑफ अमाउंट लगभग 14,000 करोड़ वर्थ ऑफ वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड वर्क इज कंप्लीटेड ऑनगोइंग अंडर द मनरेगा ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट. तो ये मनरेगा के अंदर भी 14,000 करोड़ का वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड वर्क्स है, उसको कंप्लीट कर लिया गया है या ऑनगोइंग है, ताकि हम इसमें रेन वाटर को हार्वेस्ट या ट्रैप कर सके. नेक्स्ट अगर बात किया जाए जल शक्ति अभियान की, इसका एम है, द कैंपेन एम्स एट टैपिंग रेन वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स, revitalizing existing ponds and water bodies, creating new water bodies, provisioning check dams, rejuvenating wetlands and rivers before the onset of the monsoon. तो अगर मानसून आने वाला होगा उससे पहले ही हम लोग ये सब प्रिपेयर करके रखेंगे. जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक वाटर कैच बनाया गया है, यहाँ से बारिश होगी और इसको वहां पर कवर कर लिया जाएगा या होल्ड कर लिया जाएगा. तो ये काफी अच्छा है. और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है. बहुत सारे ऐसे स्टेट है जैसे कि साउथ के तमिलनाडु वगैरह, वहां पर तो एक आपका लॉ ही है कि अगर कोई आप बिल्डिंग बना रहे हो तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आपको टेक्निक रखनी पड़ेगी. ये जरूरी है, ऐसा कर देना चाहिए सारे स्टेट में. तो लोग कहीं ना कहीं लॉ के चलते भी कई ये हार्वेस्टिंग करेंगे रेन वाटर. जल शक्ति अभियान की कुछ और भी है, जैसे कि रीयूज बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स, इंटेंसिव अफॉरेस्टेशंस, वाटरशेड डेवलपमेंट, रेनोवेशंस ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज टैंक्स एंड वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. It is also planned to create a database of all water bodies in the country by geotagging. Geotagging के थ्रू सारे वाटर बॉडीज को टैग करने की बात चल रही है. Them and using this data to create scientific and data based district level water conservation plan. तो ये हाईटेक किया जाएगा जितने भी वाटर और उससे रिलेटेड जो हमारे जो रिसोर्सेस है उससे. अगर अदर कुछ इनिशिएटिव देखा जाए वाटर कंजर्वेशन के लिए और कौन कौन सी इनिशिएटिव चल रही है, तो एक चल रहा है आपका जल जीवन मिशन. ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में ये है और ये इंश्योर करता है पाइप्ड वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज. तो पाइप वाटर पहुंचाने के लिए, एंड विच हेल्प्स टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, या जिसका नारा है हर घर नल से जल. ये कुछ टैगलाइन है. दूसरा जो है जल जीवन मिशन अर्बन, ये रूरल के लिए था, ये अर्बन के लिए है. एंड इन द बजट 2021-22 जल जीवन मिशन वाज अनाउंस्ड अंडर द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल टैप्स इन ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स इन अकॉर्डेंस विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 विच इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है क्लीन वाटर और सैनिटेशन के लिए, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह की इनिशिएटिव लॉन्च कर रही है.
कुछ और इनिशिएटिव की बात किया जाए तो नेशनल वाटर मिशन है, जो जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मिनिमाइजिंग वेस्टेज एंड इंश्योरिंग मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ अक्रॉस एंड विद इन स्टेट थ्रू इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। दूसरा जो है नीति आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, एंड लास्ट जो है दैट इज द अटल भूजल योजना। एंड दिस बेसिकली दिस प्रोग्राम इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो लगभग 6000 करोड़ का है फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर विद इन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये कुछ स्कीम्स है जल से रिलेटेड, और आमतौर पर इस तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट यूपीएससी वगैरह पूछता है, और उस इवन नॉट ओनली द नेम बट रादर दे यूज टू आस्क द डिटेल्स। सो ये काफी अच्छा, ये दोनों जो स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्री एज वेल एज योर मेंस एग्जामिनेशंस। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली तुलु लैंग्वेज रिसेंटली न्यूज में था, और जो केरला और कर्नाटका में आमतौर पे तुलु लैंग्वेज के जो स्पीकर्स हैं, और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि दिस तुलु लैंग्वेज शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल्स। तो आपको मालूम होगा 8 शेड्यूल, जहाँ पर हमारे जितने भी लैंग्वेजेस हैं, जो 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लिखे गए हैं, डाले गए हैं। समझते हैं थोड़ा इससे रिलेटेड न्यूज ये है कि द तुलु स्पीकर मेनली इन कर्नाटका एंड केरला हैव बीन रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट टू गिव इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस एंड इंक्लूड इट इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। दूसरा, तुलु के बारे में अगर समझा जाए तो तुलु इज अ द्रविडियन लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज की बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जबकि ये जो तुलु लैंग्वेज है ये द्रविडियन लैंग्वेज के अंदर में आता है। इट इज मोस्टली स्पोकन इन 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, एक तो दक्षिण कन्नड़ा एंड उदुपी ऑफ कर्नाटका एंड कसरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो ये कुछ है। कसरगोड डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड द सप्ता भाषा संगम भूमि, मीन्स कॉन्फ्लुएंस ऑफ 7 लैंग्वेजेस, एंड तुलु इज वन ऑफ अमंग द 7 लैंग्वेजेस में से तुलु भी एक क्या है, एक लैंग्वेज है वो समागम का। Tulu speakers mainly from Karnataka and Kerala are requesting an official language status for Tulu by its inclusion in the 8th schedule to the constitutions. तुलु आर्ट एंड कल्चर भी डेवलप हो रहा वहाँ पर होता है, जैसे कि तुलु हैज अ रिच ओरल लिटरेचर ट्रेडिशंस विद फोक सॉन्ग्स फॉर्म्स लाइक ट्रेडिशनल फोक थिएटर्स, यक्षगाना। Tulu also has an active tradition of cinema with around 5 to 7 Tulu language movies produced a year, and moreover Tulu films are screened every day in Mangalore and Udupi in at least one theater. तो तुलु लैंग्वेज से रिलेटेड ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जाते हैं। आगे अगर देखा जाए तो लैंग्वेजेस का तो ये कुछ है उसके, जैसे कि प्रोटो साउथ द्रविडियन, उसके अंदर में लैंग्वेज के जिसमें उरुलू, तमिल, मलयालम, कोगाड़ा, कोफा, तोड़ा, बगोडा, कन्नड़ा एंड तुलु। तो ये कुछ लैंग्वेजेस है साउथ के। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन फ्रॉम द साहित्य एकेडमी। अगर एक बार ये अगर 8th शेड्यूल में चला आया तो तुलु के लिए कुछ स्टेटस मिल जाएगा, जैसे कि ये इसके लिए साहित्य एकेडमी के लिए साहित्य एकेडमी में रिकॉग्निशन हो जाएगा। दूसरा, ट्रांसलेशन ऑफ तुलु लिटरेरी वर्क्स इनटू द अदर लैंग्वेजेस, ये किया जा सकेगा। Members of parliaments and member of legislative assembly could speak Tulu in parliament and state assemblies respectively, and options to take competitive exam in Tulu including all India competitive examination like the civil services। तो यूपीएससी में भी तुलु लैंग्वेजेस का एक ऑप्शनल पेपर हो सकता है। तो ये कुछ फैसिलिटीज होती है अगर कोई लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो। नेक्स्ट, 8th शेड्यूल में जैसे आपको मालूम होगा देयर आर अराउंड 22 लैंग्वेजेस, और द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द 8th शेड्यूल ऑकर इन आर्टिकल 344(1) क्लॉज 1 एंड 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 8th शेड्यूल लैंग्वेज से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल रिलेटेड है, तो एक तो 344 क्लॉज 1 एंड 351। लैंग्वेजेस जो है 8th शेड्यूल में वो है असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। अगर तुलु ऐड होता है तो ये 23rd लैंग्वेजेस हो जाएगा। और आपको मालूम होगा कि अगर लैंग्वेजेस को ऐड करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो दिस इज अबाउट द तुलु लैंग्वेजेस।
चलिए एट द एंड हमारा जो लास्ट का सेशन दैट इज द यूपीएससी प्रीलिम्स 2021-22 वन लाइनर, उसमें सबसे पहला है इंडो थाई कॉर्पेट। अभी रिसेंटली नेवल एक्सरसाइज हुआ था और ये 31st एडिशंस ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बिटवीन द इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी जो भी कंक्लूड हुआ अंडमान सी क्लोज टू द स्टेट ऑफ मलक्का। तो ये इंडो थाई कॉर्पेट नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। सेकंड जो है तो इंडियन गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट द सी प्लेन सर्विसेज इन इंडिया। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एमओयू साइन किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सी प्लेन सर्विसेज इन इंडिया। और इंडिया का जो पहला सी प्लेन है वो स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन बिटवीन केवाड़ी एंड साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद इन अक्टूबर 2020 अंडर सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज। नेक्स्ट थर्ड जो है डागमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात चल रही है बिहार के अंदर में, और रिसेंटली एमओयू भी साइन किया गया है बिटवीन नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड BSHPC फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डागरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो सुपौल बिहार में है। तो ये कुछ है वन लाइनर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं DNA के एक अलग सेगमेंट में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड शेयर दिस वीडियो along with your friends. Thank you.